Hello everyone, welcome to my channel Knowledge Crush. I'm Dr. Vishakha. And in this video, we will cover important concept like atmosphere, or in other words, structure and the composition of the atmosphere. Chemical composition of the air, and also I describe the composition of the atmosphere, composition of the gases in this video. Okay. Basically we all know that atmospheric surface of the planet Earth is known for its life supporting property. So based on this topic like the composition of the atmosphere is really very important for the UPSC aspirant. In fact, in fact, sometimes questions are being also asked in the UPSC prelims exam. Okay, so here we are going to start our topic atmosphere. So I start my topic from the what is atmosphere. Okay, so see here, atmosphere means what? This is an envelope of the gases which surround the earth. See, what is atmosphere? Means the envelope of the gases which surrounding the earth. Okay, see, this is what our earth. So the envelope of the gases which is surrounding the earth is called the atmosphere. This is really very easy definition. Okay, so it forms the protective boundary between the outer space and the biosphere. Okay, बायोस्फीयर एंड आउटर स्पेस के बीच में ये जो बाउंड्री बना रहा है, ओके, इन दोनों के बीच में, इसी को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर. So the atmosphere is a dynamic collection of the gases that constantly move and change. You getting my point? Okay. So these gases form several layers which is around the earth, and that are some in which some are loosely defined by composition and the temperature. So these gases which present in the atmosphere are not the direct residue of the early stage of the earth formation. But हम ये नहीं कह रहे कि जब अर्थ का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ तभी गैसेस आए, पर इंस्टेड यहाँ पे मैं क्या कह सकती हूँ कि ये जो गैसेस है कैसे फॉर्म हुए, इसका एक प्रोग्रेस कैसे होता आया, या आज के डेट में जो हम हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस देखते हैं वो किस तरीके से आए, बिकॉज ऑफ द volcanic eruption, hot spring, chemical breakdown of the solid matter and redistribution from the biosphere. तो इस वजह से आज के डेट में जो हमारे एटमॉस्फेयर में हमें प्रेजेंट गैसेस दिखते हैं उसका ओरिजिन हम बात कर सकते हैं. The atmosphere is a significant component of the biospheric ecosystem also. क्यों? Because life on the earth's surface is because of this atmosphere. यदि ये नहीं होता, एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ पे नहीं होता, तो हमारी अर्थ भी कैसे बैरन होती, किसकी तरह? मून की तरह. सो इन अनदर वर्ड मैं ये भी कह सकती हूँ कि एटमॉस्फेयर व्हाट इट प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन विच इज कमिंग फ्रॉम द सन. अपार्ट फ्रॉम दैट इट एक्ट एज अ ग्रीन हाउस बाय अलाउइंग द शॉर्ट वेव रेडिएशन. अब शॉर्ट वेव रेडिएशन कहाँ से हमें मिल रही है? सन से. या एट द सेम टाइम this atmosphere also help in trapping the long wave terrestrial radiation. अब ये कहाँ से आ रही है? अर्थ सरफेस से. तो ये क्या कर रही है? हमें प्रोटेक्ट भी कर रही है किससे? हार्मफुल रेडिएशन से. All life form need a particular range of the temperature. ये तो हमें पता है. सी हम ये कह सकते हैं कि यदि हम सन से, यदि हम हमारे अर्थ के पोजीशन की बात करते हैं तो मर्क्यूरी, देन वेनस एंड थर्ड पे हमारी अर्थ आती है. ओके, ना ही हम मर्क्यूरी पे लाइफ देख रहे हैं, ना ही हम वेनस पे देख रहे हैं, पर हम अर्थ पे देख रहे हैं. अर्थ के बाद भी जो भी हमारे आ रहे स्टार्स उस पे भी हम क्या है और लाइफ नहीं देख रहे. वाई? बिकॉज ऑल लाइफ फॉर्म्स नीड अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड द स्पेसिफिक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ द सोलर रेडिएशन. वाई? बिकॉज टू कैरी आउट देयर बाय फिजिकल प्रोसेस. इसके लिए जो भी चीजें, मतलब जो भी चीजें इन द सेंस टेम्परेचर एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोलर रेडिएशन, इसकी जितनी इंपॉर्टेंट या जितना इसकी ज़रूरत है उसी मात्रा में हमें अर्थ पे मिलता है. और इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जितने भी लाइफ है वो कहाँ पे फॉर्म हुई है? अर्थ के ऊपर. द एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो एब्जॉर्ब द सर्टन फ्रीक्वेंसीज एंड लेट थ्रू सम अदर फ्रीक्वेंसीज ऑफ द सोलर रेडिएशन. सो एटमॉस्फेयर रेगुलेट द एंट्री ऑफ द सोलर रेडिएशन. हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं. ओके. Apart from that, atmosphere also keeps the temperature over the earth's surface within the certain limit. ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीम इतनी ज़्यादा हॉट हो जाती है कि हमारा जो लाइफ है वो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट नहीं रहता है, ऐसा भी नहीं है. तो ये वाला क्यों हो रहा है, या जो सर्टन लिमिट की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, ये क्यों? बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर.
यदि हम ये कहें कि हमारे अर्थ पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है, मीन्स इन द अब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, देन क्या होगा, एक्सट्रीम टेम्परेचर आएगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्सट्रीम टेम्परेचर हम हमारे अर्थ के ऊपर डे एंड नाइट जो है वो एग्जिट होते हुए नहीं देख पाएंगे ओवर द सरफेस। ओके, सो यही यहाँ पे क्या कह सकती हूँ मैं, एटमॉस्फेयर मीन्स ये क्या है, यहाँ पे एक यूजफुल है किस एटमॉस्फेयर किसके लिए, लाइफ के लिए। द एटमॉस्फेयर ऑल्सो टेक केयर ऑफ द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं कि सिर्फ एटमॉस्फेयर अर्थ की ही यहाँ पे मतलब केयर कर रहा है, अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट है उनका भी ये टेक केयर करता है। लाइक मेटर्स आएगा, जब मेटर्स क्या है, दैट गेट बर्न ऑफ वाइल पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द फ्रिक्शन। तो ये जो बर्न भी हमें दिख रहा है किसकी वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। सो इन शॉर्ट यदि मैं एटमॉस्फेयर की बात करूं तो क्या है, इट इज एन एनवेलप ऑफ द गैसेस विच सराउंडिंग द अर्थ एंड दिस इज सिंपली कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। ओके, सो मैं आगे बढ़ती हूँ। अब हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, देखो इस स्लाइड पे मैं बात करूंगी। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर की बात करूं तो द गैसेस इन द एटमॉस्फेयर आर कंपोज ऑफ न्यूट्रल एंड अनचार्ज पार्टिकल। इसके ऊपर देखो प्रैक्टिकली यहाँ पे मैंने क्या कहा कि एटमॉस्फेयर कैसे कंपोज हुआ है, तीन चीजों से। वन इज द गैसेस, सेकंड वेपर एंड थर्ड इज द पार्टिकुलेट्स। वन बाय वन हम तीनों की बात करेंगे। हम गैसेस की भी बात करेंगे, वेपर की भी करेंगे और पार्टिकुलेट्स की भी करेंगे। पर यहाँ पे पहले मैं इसका तो मीनिंग बताने की कोशिश करूँ कि कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर क्या है, किस तरीके का इसका कंपोजिशन हुआ है। द गैसेस इन द एटमॉस्फेयर आर कंपोज, कैसे कंपोज हुए, इधर वो न्यूट्रल है, अनचार्ज पार्टिकल से ही बने हैं। एक्सेप्ट फॉर द नोबल गैसेस, इसमें आप इस लिस्ट में देख सकते हो, दीज आर द नोबल गैसेस। एक्सेप्ट फ्रॉम दिस नोबल गैसेस, एटम्स इन द गैस फेज शेयर द इलेक्ट्रॉन्स विद द अदर एटम। देखो ये केमिस्ट्री का पार्ट है। आई नो जो भी आर्ट बैकग्राउंड के होंगे उनके लिए लिटिल बिट थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, तो इस पॉइंट को ज़्यादा मत ध्यान रखना। इतना ही मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे यदि नोबल गैस है, इनको यदि एक्सेप्शन रखे तो जो बाकी एटम है पर्टिकुलर गैस के अंदर वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ओके, और उसके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि ये नया गैस यहाँ पे फॉर्म हो सकता है। सो द अर्थ एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ नोबल गैस एटम एंड मेनी काइंड्स ऑफ द मॉलिक्यूल। सो बेसिकली यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो एटमॉस्फेयर है हमारा वो कैसे कंपोज हुआ है, फर्स्ट इज द गैसेस, सेकेंड वेपर एंड थर्ड वन इज द पार्टिकुलेट्स। तो इसमें से मैं पहला टॉपिक स्टार्ट करती हूँ जिसका नाम है, यहाँ पे वर्ड यूज किया मैंने, गैसेस, और इससे हम बात करते हैं, इस स्लाइड पे समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो सी यदि इस स्लाइड पे आप देख रहे हो तो सबसे ज्यादा कौन है, नाइट्रोजन 78% है। देन हम बात करते हैं ऑक्सीजन, वो है 21%, एंड ऑल अदर गैसेस वो कितने में आ रहा है, 1%। यदि आप इन सब का टोटल करो ना, ये 1% में तो नहीं, जैसे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन निकाल दो, रिमेनिंग की यदि आप यहाँ पे टोटल करो तो ये 1% में आपको मिलेंगे। सो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन दोनों को ही यदि हम बात करें, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन की, तो दिस टू गैसेस मेकअप नियरली 99% ऑफ द क्लीन एंड द ड्राई एयर। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन 21% है एंड नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे 78% है। दोनों को यदि टोटली हम एक साथ बात करें तो कितना ये बना रहे, 99% ऑफ द क्लीन एंड द ड्राई एयर। And the remaining gases are mostly the inert and which constitute the 1% of the atmosphere. अब यहाँ से जो बाकी गैसेस की मैं बात कर रही हूँ क्या है, एक इस कौन से गैस में यहाँ पे आ रहे, इनर्ट गैस के अंदर आ रहे हैं, समझ गए यहाँ बात। और इनका कंस्टिट्यूट कितना हो रहा है, इस 1% में, बिकॉज ऑल अदर गैसेस एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड द नाइट्रोजन, इनके अलावा बाकी जितने भी गैसेस है वो कितने परसेंट में यहाँ पे दिख रहे हैं हमें, 1% में। ओके, तो हम यहाँ पे वन बाय वन देखने की कोशिश करते हैं। पहला गैस में स्टार्ट कर रही हूँ, कौन सा, ऑक्सीजन, विच इज 21%। It constitute only the 21% of the total volume of the atmosphere. And most important gas है ये, या it is the most important component of among the gases. All living organism क्या करता है, inhale करता है किसको, ऑक्सीजन को। We inhaling the oxygen and exhale the carbon dioxide. और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट देखो तो कितना है यहाँ पे, 0.037% के आसपास यहाँ पे हमें क्या दिखता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कहीं पे आपको ये 38% भी दिखेगा, कहीं पे 37% भी दिखेगा। इस डिजिट में इतना ये मत होना कंफ्यूज, बट इतना ही है। मीन्स हम जितना इनहेल कर रहे हैं वो 21% है, और जो हम एक्सेल करने की बात कर रहे हैं उसका परसेंट कितने में आ रहा है, 0.0 में आ रहा है। ओके, सो बिसाइड ऑक्सीजन कैन कंबाइन विद द अदर एलिमेंट टू फॉर्म द इम्पोर्टेंट कंपाउंड, जैसे ऑक्साइड्स। ओके,
एंड कंबशन जो भी हो रहा है हमारे अर्थ पे, जो कंबशन इज नेवर एंड एवर पॉसिबल विदाउट द ऑक्सीजन। यदि आपको किसी भी चीज़ का कंबशन करना है तो वन गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट और वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, वो है हमारा ऑक्सीजन। ओके, सेकेंड गैस की बात करते हैं, वो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कितना परसेंट यहाँ पे कंस्टिट्यूट कर रहा है? 78% ऑफ द टोटल एटमॉस्फेरिक वॉल्यूम एंड इट इज रिलेटिवली इनर्ट गैस। इसको हम कह सकते हैं इनर्ट गैस के अंदर मतलब रख सकते हैं, पर मोस्टली हम यूज करते हैं कि ऑल द अदर गैसेस विच कम अंडर द 1% आर द इनर्ट गैस। ओके, ये भी एक बहुत बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है लाइक द ऑक्सीजन। पर इसका जो मेन फंक्शन है ना किसका? नाइट्रोजन का, टू कंट्रोल द कंबशन बाय डाइल्यूटिंग द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या कर रहा है? कंबशन में हेल्प कर रहा है, पर नाइट्रोजन क्या कर रहा है कि ये जो कंबशन इससे हो रहा है ना ऑक्सीजन से, उसको डाइल्यूट करने में हेल्प करता है, और वो जो कर रहा है वो कौन है? आपका नाइट्रोजन। इट ऑल्सो इनडायरेक्टली हेल्प इन द ऑक्सीडेशन ऑफ द डिफरेंट काइंड्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? ये ऑल अदर गैसेस जो 1% में आ रही है। ठीक है, इसमें से जो मैं पहला गैस की बात करूंगी वो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वन बाय वन इनकी भी बात करेंगे, पर पहले मैं बात करूंगी किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना कंस्टिट्यूट कर रहा है परसेंट बाय वॉल्यूम? 0.037% और इन 38%। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स मोस्टली थ्रू द फोटोसिंथेसिस क्या करते हैं? दे एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर and use it to the manufacture of the food and keep other biophysical process going. So this is an efficient absorber of the heat. कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और ये इफिशिएंट एब्जॉर्बर है हीट का। It also considered a great to be a great climatic significance. Of course वो यदि heat absorb कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड considered to be the very important factor in the heat energy budget. आज के डेट में हमें पता है कि हमारा जो पूरा एटमॉस्फेयर की हम बात करते हैं, पोल्यूशन कुछ भी चीज़ की बात करें तो मेन जो हमारा वो गैस आता है वो आता है कार्बन डाइऑक्साइड और द कार्बन मोनोऑक्साइड ऑल्सो। पर यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड। और एनर्जी बजट मीन्स हीट एनर्जी बजट की जब भी हमारी बात होती है वी यूज द कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कह सकते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसके अंदर? हीट एनर्जी बजट में। और इसका इंक्रीज होता मतलब हम डे बाय डे हम क्या करें? कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग टू बी एन इंक्रीज। वाई? बिकॉज इंक्रीज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल लाइक ऑयल, कोल, नेचुरल गैस एंड ऑल, and carbon dioxide percentage in the atmosphere has been increasing at an alarming rate. ये चीज़ें हमें पता है, जिस वजह से हम ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल बहुत सारे वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, पर मोस्टली जो इंपॉर्टेंट गैस है जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है अलार्मिंग लेवल में वो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। मोर कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर मीन्स मोर हीट एब्सॉर्प्शन। अब यदि बहुत ज़्यादा ये हीट ही एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो इट सिग्निफिकेंटली रेज द टेम्परेचर एट लोअर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड दस इंड्यूसिंग द ड्रास्टिक क्लाइमेट चेंजेस। ओके, तो ये है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। अपार्ट फ्रॉम दैट अब हम बात करते हैं किसकी? एरागॉन की। एरागॉन भी क्या है? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस में ही आता है, पर ये ओनली इट कंस्टिट्यूट 0.93% जो है ये एरागॉन यहाँ पे कंस्टिट्यूट करता है। एक गैस है जो मैंने यहाँ पे नहीं वर्ड यूज किया, वो है हमारा ओजोन गैस। ओजोन गैस देखो ट्रोपोस्फीयर के अंदर बहुत बड़ा तो रोल नहीं प्ले करता है, या सॉरी नॉट रोल बट परसेंटेज बाय वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी उसका जो भी परसेंटाइल है उस हिसाब से मैं यहाँ पे ओजोन की बात कर रही हूँ। इट इज़ अगेन द अनदर इंपॉर्टेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर। एंड इसे यदि हम ओजोन की बात करें तो ओजोन कैसे बन रहा है? ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन होते हैं, सी ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स है मीन्स O2, और इसी O2 में जब एक अगेन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड होता है और O3 जब फॉर्म होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? ओजोन कहते हैं। सो इन बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इट इज द टाइप ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ 3 इंस्टेड ऑफ 2 आइटम। ठीक है, और ये बहुत ही कम परसेंटाइल मीन्स बाय वॉल्यूम इन द एटमॉस्फेयर है विच इज द 0.00006%। यू गेटिंग माई पॉइंट? इतना कम है। और ये कहाँ पे मोस्टली हमें दिखता है? ओजोन 20 to 25 किलोमीटर अल्टीट्यूड के बीच में ही यहाँ पे होता है। बट ये इतना कम परसेंटाइल होते हुए भी ना इट प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। कैसे? फॉर ब्लॉकिंग द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। जो भी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रहे हैं ना सन से, उनको क्या करता है? ब्लॉक करता है। एंड अदर गैसेस अगेन ऑल्सो फाउंड, जिसके अंदर हम बात करेंगे नियॉन, हेलियम, मेथेन, क्रिप्टॉन एंड ऑल। तो ये जो है ना अदर गैस, तो ये एक्सट्रीमली निग्लिजिबल क्वांटिटीज में हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो इसमें हमने पहला पार्ट कंप्लीट किया जिससे हमने क्या कहा? गैसेस। अब हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं जो होगा हमारा वेपर। तो वेपर तो ऑफकोर्स गैस से ही आता है, तो हमने यहाँ पे पॉइंट रखा किसका? वाटर वेपर।
सी दिस वेपर कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर लाइक इन बिटवीन 0 to 5% जो है ना बायो, इतना ही एटमॉस्फेयर में क्या है हमें वाटर वेपर मिलता है. एटमॉस्फेरिक वेपर रिसीव थ्रू द इवोपरेशन ऑफ द मॉइस्चर. देखो यहाँ पे इवोपरेशन मैंने लिखा, तो एटमॉस्फेरिक जो भी वेपर आ रहा है वो कहाँ से हमें दिख रहा है, बिकॉज ऑफ द इवोपरेशन ऑफ द मॉइस्चर. वाटर फ्रॉम द वाटर बॉडीज, ये जो वाटर बॉडीज है, रन ऑफ वाटर एंड ऑल लाइक सी, ओशन, लेक एंड ऑल, पॉन्ड, रिवर. अपार्ट फ्रॉम दैट वेजिटेशन की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, ठीक है, वेजिटेशन एंड द सॉइल कवर. तो इन सारी जगह से हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे वाटर वेपर. वेपर जो है डिपेंड होता है किस पे, टेम्परेचर के ऊपर. एंड देयरफॉर इट डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर पोलवर्ड इन द रिस्पॉन्स टू द डिक्रीजिंग टेम्परेचर टूवर्ड द पोल. तो मोस्टली जो वाटर वेपर है वो हमें कहाँ पे एक्सट्रीमली ज्यादा मीन्स ज्यादा मिलेगा, इक्वेटर पे. और यदि हम पोलवर्ड की तरफ जाएंगे तो ये जो वाटर वेपर है इसका परसेंटाइल क्या होता दिखेगा, डिक्रीज होता हुआ दिखेगा. ठीक है. इट कंटेन द वेपर डिक्रीज अपवर्ड, जितना आप ऊपर की तरफ जाओगे ये डिक्रीज होगा. मोर देन 90% ऑफ द टोटल एटमॉस्फेरिक वेपर इज फाउंड अप टू द, मतलब 5 किलोमीटर तक ही जो 90% जो हमारे वाटर वेपर है वो पाए जाते हैं. और जितना आप ऊपर जाओगे फिर वहां से वो क्या होता हुआ जाएगा, डिक्रीज. ओके. एंड द मॉइस्चर कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर दे क्रिएट सेवरल फॉर्म. पहले तो हम बात करेंगे किसका, कंडेंसेशन. सी यहाँ पे कंडेंसेशन की हम बात कर सकते हैं. देन हम प्रेसिपिटेशन की बात कर सकते हैं. ये मॉइस्चर कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट सेवरल फॉर्म्स. फर्स्टली क्या कहा मैंने, इवोपरेशन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ, फिर यहाँ से क्या हुआ, प्रेसिपिटेशन हुआ. तो अब प्रेसिपिटेशन एंड ऑल लाइक क्लाउड की बात करेंगे, फॉग, फ्रोस्ट, रेनफॉल, ठीक है, यहाँ से रेनफॉल या स्नो मेल्ट, रन ऑफ एंड ऑल, इसकी वजह से हम यहाँ पे क्या मॉइस्चर कंटेंट देखते हैं. वेपर इज ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट फॉर इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन. You getting my point? So that electromagnetic radiation wave reach the Earth's surface without many obstacle. And vapor is less transparent for outgoing long wave terrestrial radiation. Therefore, it help in heating the Earth's surface and lower the portion of the atmosphere because it absorbs the terrestrial radiation. तो इसी के तौर पे वाटर वेपर जो है, जो क्या है हमें हेल्प करता है. अब थर्ड की बात करूंगी, वो है हमारा पार्टिकुलेट्स. थर्ड टॉपिक की बात करूं तो पार्टिकुलेट्स या पार्टिकुलेट मैटर की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ. ओके. सी इस डायग्राम में तो उस तरीके का नहीं है, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट आर द पार्टिकुलेट मैटर्स. बेसिकली क्या है, ये सॉलिड पार्टिकल्स होंगे जो प्रेजेंट है किसमें, एटमॉस्फेयर में, लाइक सैंड पार्टिकल्स. अब सैंड पार्टिकल्स कैसे बनेंगे, वेदर्ड रॉक एंड ऑल से. पोलन ग्रेन्स, ओके, पोलन ग्रेन्स. अपार्ट फ्रॉम द स्मॉल ऑर्गेनिज्म, सी हियर माइक्रोब्स ऑर्गेनिज्म में जा रहा है, ठीक है, स्मॉल ऑर्गेनिज्म, ओशन सॉल्ट एंड ऑल. So the upper layer of the atmosphere may even have fragment of the matters and which got burned up in the atmosphere. तो उससे भी हमें क्या मिलता है यहाँ पे, particulate matters. These particulates help in the, किसमें mostly help कर रहा है, absorbing, then I said reflecting and the scattering द सोलर रेडिएशन. जो हम देख रहे हैं ना कि एब्जॉर्ब भी हो रहा है हमारा हीट या रेडिएशन, या रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कैटर्ड हो रहा है. तो ये तीनों चीजें किसकी वजह से हो रही है, पार्टिकुलेट्स मैटर की वजह से. एंड अगेन आई सेड विच एड द वेरी चार्मिंग कलर लाइक रेड, ऑरेंज एट द सनराइज एंड द सनसेट. तो ये जो सनराइज एंड सनसेट के समय में जो हमें कलर्स यहाँ पे चार्मिंग कलर दिख रहे हैं वो किसकी वजह से, पार्टिकुलेट मैटर्स की वजह से. इनफैक्ट हम कहते हैं ना कि स्काई के हमारा ब्लू कलर का है, तो ये ब्लू कलर हमें क्यों दिख रहा है, ड्यू टू द सिलेक्टिव स्कैटरिंग ऑफ द सोलर रेडिएशन बाय डस्ट पार्टिकल्स. समझ आया आपको बात. तो आज का वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर. सो बेसिकली आज हमने क्या कंप्लीट किया, हमने आज स्टार्ट किया है क्या, एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर एंड द कंपोजिशन. इसमें कंपोजिशन अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया है, पर हमने स्ट्रक्चर में पहले बात की, व्हाट इज एटमॉस्फेयर. देन हमने कंपोजिशन, देन हमने एटमॉस्फेयर को 3 पार्ट में डिवाइड किया, गैसेस, वेपर एंड द पार्टिकुलेट्स. गैसेस में हमने इन सारे पार्ट्स को डिटेल में समझने की कोशिश की. देन हमने वाटर वेपर की बात की एंड द पार्टिकुलेट मैटर. ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर. ओके, सो तब तक के लिए थैंक यू.